جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا مستقبل کیا ہوگا؟ سیکریٹریٹ کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کل 995 آسامیوں میں سے 474 تاحال خالی ہیں۔ 48% افسران کی آسامیاں بھی خالی۔ کھاتوں میں سیکریٹریز کی 100% پوسٹیں شو کروا دی گئی ہیں۔ روہی نے ہیومن ریسورس کی فہرست حاصل کر لی ہے۔ سیکریٹریٹ کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کل 995 آسامیوں میں سے 474 تاحال خالی ہیں۔ 48% افسران کی آسامیاں بھی خالی ہیں۔ کھاتوں میں سیکریٹریز کی 100% پوسٹیں شو کروا دی گئیں۔ روہی نے ہیومن ریسورس کی فہرست حاصل کر لی۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے وسیم شہزاد۔ جی وسیم۔ تو موجودہ حکومت کی بات کرتے چلیں تو موجودہ حکومت کی جانب سے سول سیکریٹریٹ کے ساتھ ہونے والا ستیلا سلوک جو ہے وہ تاحال جاری ہے۔ اگر آسامیوں کی بات کرتے چلیں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں، تو جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں ٹوٹل آسامیاں 995 ہیں، جن میں 474 جو ہے وہ آسامیاں خالی ہیں۔ مطلب بات کرتے چلیں اگر فیصد کے اعتبار سے تو 52% جو ہے وہ آسامیاں فل ہیں صرف، اور 48% آسامیاں جو ہیں وہ خالی پڑی ہیں، جو کہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی طرف حکومت کی جانب سے کوئی توجہ جو ہے وہ کیوں نہیں دی جا رہی، یہاں پر جو خالی آسامیاں موجود ہیں ان کو پورا کیوں نہیں کیا جا رہا۔ اگر میں سیکٹریز کی بات کرتا چلوں تو جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کے اندر جو سیکٹریز کی ٹوٹل تعداد ہے وہ 17 ہے، لیکن 17 کی 17 جنوبی پنجاب سیکٹریٹ میں فل شو کرائی جا رہی ہیں، لیکن جنوبی پنجاب کا اس میں کوئی بھی سیکٹری شامل نہیں ہے۔ تمام سیکٹری جو ہیں وہ لاہور کے سیکٹری ہیں، جو کہ جنوبی پنجاب کی جو پوسٹ ہے اس کے اوپر اضافی طور پر ہمیں موجود دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کرتے چلیں اسپیشل سیکٹری کی، تو جنوبی پنجاب سیکٹریٹ میں 10 اسپیشل سیکٹری جو ہے وہ بنائے گئے تھے، جن میں 8 اسپیشل سیکٹری جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ان اسپیشل سیکٹری میں وہ سیکٹری بھی موجود ہیں جو جنوبی پنجاب سیکٹریٹ میں پہلے سیکٹری تھے، لیکن اب ان کو اسپیشل سیکٹری جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، جبکہ 2 ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جن کے اندر جو ہے وہ اسپیشل سیکٹری موجود نہیں، جس میں پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ہے، جبکہ دوسرا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ محکمہ زراعت ہے۔ محکمہ زراعت جنوبی پنجاب میں نہ سیکٹری موجود ہے، نہ ہی اسپیشل سیکٹری۔ جو سیکٹری موجود ہے وہ سیکٹری پنجاب افتخار علی سہو ہے، ان کو جنوبی پنجاب کا اضافی چارج جو ہے وہ دے دیا۔ جب تک کھاتوں کی بات کرتے چلیں تو حکومتی اعتبار سے کھاتے جو ہیں وہ مکمل طور پر فل ہیں جنوبی پنجاب کے سیکٹریز کے، لیکن یہ تمام تر جتنے بھی سیکٹری ہیں یہ سیکٹری جو ہیں وہ لاہور کے ہیں، جن کا جنوبی پنجاب سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اضافی چارج لینے کی وجہ سے جنوبی پنجاب کی آسامیوں کو مکمل کر دیا گیا۔ اسی طرح ایڈیشنل اگر سیکٹریز کی بات کرتے چلیں تو جنوبی پنجاب میں ٹوٹل سیٹیں جو ہیں وہ 25 ہیں، جن میں 12 جو ہیں وہ ایڈیشنل سیکٹری موجود ہیں، جبکہ 13 جو ہیں ایڈیشنل سیکٹری وہ موجود نہیں۔ اسی طرح ڈپٹی سیکٹری کی بات کرتا چلوں تو ڈپٹی سیکٹری جنوبی پنجاب میں ٹوٹل سیٹیں جو ہیں وہ 52 ہیں، جن میں 13 موجود ہیں، اور اسی طریقے سے 40 آسامیاں اس وقت خالی ہیں۔ اسی طریقے سے سیکشن آفیسرز کی بات کرتے چلیں تو جنوبی پنجاب سیکٹریٹ میں ٹوٹل آسامیاں جو ہیں وہ 100 کے قریب سیکشن آفیسرز کی ہیں، جن کے اندر 42 جو ہیں وہ سیکشن آفیسرز موجود ہیں، اور 58 کی سیٹس جو ہیں وہ اس وقت خالی ہیں۔ اسی اعتبار سے اگر میں منسٹریل سٹاف کی بات کرتا چلوں تو 790 کے قریب جو ہے وہ ٹوٹل آسامیاں ہیں، جن میں 428 تعینات لوگ ہیں، 362 جو ہے وہ خالی ہیں۔ اسی طرح سے ٹوٹل اگر ان تمام تر جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کے آسامیوں کی بات کرتے چلیں تو جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کی 995 جو ہیں وہ ٹوٹل آسامیاں ہیں، جن میں 521 جو ہیں ان آسامیوں کے اوپر تعیناتی ہو چکی ہے، جبکہ 474 ایسی سیٹیں ہیں کہ جو ابھی تک جو ہے وہ آسامیاں خالی ہیں۔ 52% لوگ جو ہے جنوبی پنجاب سیکٹریٹ میں موجود ہیں، اور اسی طریقے سے 48% لوگوں کا موجود نہ ہونا یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ جنوبی پنجاب کے 17 ڈپارٹمنٹ جو جنوبی پنجاب سیکٹریٹ میں لائے گئے تھے، ان میں اس طریقے سے 52% جو ہے وہ آسامیاں فل ہونا اور 48% آسامیاں خالی ہونا، یہ یقیناً آدھی آسامیاں ہیں جو کہ خالی ہیں، جو اس بات کا یقیناً ثبوت دے رہی ہیں کہ جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کی طرف پنجاب گورنمنٹ کا یا حکومت پنجاب کا موجودہ حکومت کا کوئی رجحان جو ہے وہ بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایک خاص عرصے سے یہ آسامیاں خالی ہیں، جو کہ جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کے جو آفیسرز ہیں جو خالی آسامیاں ہیں یہ بھی راہ تک رہی ہیں موجودہ حکومت کا کہ حکومت جو ہے وہ نظر کرم ان کے اوپر فرمائے گی، اور اس کے بعد جو ہے ان آسامیوں کو فل کیا جائے گا۔ وسیم شہزاد بہت شکریہ۔ ڈیرہ غازی خان میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینٹر پر سہولیات کا فقدان، امدادی رقم کے حصول کے لیے آنے والی خواتین رل گئی ہیں۔ مزید بتائیں گے بیورو چیف اقبال صادق۔ جی اقبال بتائیے گا۔
कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने नोटिस लिया है कि वो तमाम पॉइंट्स जहां पर बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के दौरान जो पैसे दिए जाते हैं या उनके सर्वेज वगैरह करवाने के लिए यहाँ के जो अवाम उनको बुलाया जाता है, तो वहाँ पर अगर बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं हैं तो उनको बंद कर दिया जाए। सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन आई हुई हैं, लेकिन उनको नीचे गंदगी पर बिठाया हुआ है। किसी किस्म का नीचे कारपेट वगैरह मौजूद नहीं है, पंखे मौजूद नहीं है। फुल टाइम हब से यहाँ पर सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, लेकिन जो ख़वातीन हैं उनको भेड़ बकरियों की तरह नीचे ज़मीन पर बिठा दिया गया है। और आप नीचे ये कचरा देख सकते हैं, शॉपर देख सकते हैं, रूढ़ी और कचरे जैसा ये यहाँ पर मंजर पेश हो रहा है। लेकिन इसी के ऊपर ही दूर दराज इलाकों से आई हुई ख़वातीन को नीचे इन्होंने बिठा रखा है। ख़वातीन सिर्फ अकेली नहीं है, बल्कि उनके साथ उनके अपने बच्चे भी मौजूद हैं। और फिर इतनी गर्मी के अंदर वो ना जाने कितनी कितनी दूर से वो सफ़र करके आई हैं। बड़ी मुश्किलात का सामना करने के बाद वो यहाँ पर आई हैं। तो इनमें से हम किसी खातून से एक दफ़ा बात करने की कोशिश करते हैं कि कितनी कितनी दूर से आए हैं और उनको क्या मुश्किलात हैं। पीने के लिए पानी, आपको कितनी तंगियाँ यहाँ पर बैठने की, पीने का पानी वगैरह मौजूद है नहीं है, नीचे बैठी हुई हैं, बताइएगा क्या परेशानी है यहाँ पे? असां 7 बजे जाया बैठे हैं, एॾा लाइन दे बाय बाय कने कचरा है, निरा और गंदगी है, पानी भी काई नहीं, बहु असां तंग थिया बैठा है। जल्दी कारखाने पैसे जरा है शुरू करन चलावण। अभी तक पैसे उन्होंने आपको देने शुरू ही नहीं किए? सुबह से आप आई हुई हैं। 1 घंटा करेनन वाला बंद थी वेंदन, बात 5 मिनट चलेनन बंद थी वेंदन। आप पीने के लिए पानी है आपके पास? पंखे हैं यहाँ पे? काई नहीं, ना पंखा है, ना बिजली है, ना पानी है। मोलदा पानी घेन के वो पींदा बैठा है, मोलदा भी मुक वेंदे और गर्म पानी है, गर्म पानी पींदा बैठा है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो एक तो ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर पंखे मौजूद नहीं है, सफाई का इंतजाम बिल्कुल नहीं है। अंदर इनका स्टाफ जहाँ पे बैठा हुआ है वो भी मंजर थोड़ा सा देखते हैं कि उनकी अपनी वहाँ पे सिचुएशन क्या है। इधर आप देख सकते हैं कि ख़वातीन इधर भी नीचे बैठी हुई, उनके बैठने का जो प्रॉपर इंतजाम है वो भी नहीं किया गया। तो इधर जहाँ पे इनका स्टाफ मौजूद है उधर देखते हैं कि इधर का क्या मंजर है। इस वक्त यहाँ पर जो पैसे हैं वो दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं कि सफाई का जो हाल है वो कैसा है। इधर आप देख सकते हैं जो ख़वातीन हैं उनको नीचे फर्श पे बिठाया हुआ है। सुबह 7 बजे से ये ख़वातीन आई हुई हैं और यहाँ पे इनको पैसे देने का जो सिलसिला है वो जारी है। ख़वातीन कह रही हैं कि उनको दरमियान में जो मौजूद हैं ख़वातीन जो बीमार हुए कहते हैं कि अभी उनको पैसे नहीं। हम किसी बंदे से बात करते हैं। मुझे बताइए कि आप इधर के इंचार्ज हैं? जी जी। अच्छा, तो मुझे बताएं ये सफाई सुथराई, कोई पंखे का इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं है, इधर आ जाएं। जी सर, बिल्कुल सफाई के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि जो कमिश्नर साहब की तरफ से, डीसी साहब की तरफ से जो ऑर्डर कैंप साइट का नोटिफिकेशन हुआ है उसमें क्लियर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, कि वो ये सफाई के हवाले से सारे इंतजामात करेंगे। जस्ट 1 या 2 दिन उनके बंदे आए हैं, उसके बाद यहाँ कोई नहीं आया सफाई के लिए। मैंने बारहा खुद उनके यहाँ से जो उनके जो यूसी इंचार्ज है उनको मैंने पर्सनली कॉल की, लेकिन उन्होंने मुझे रिफ्यूज किया। उल्टा यहाँ से मुझसे जो है ना वो मिसबिहेव करके गए। ये कंप्लेन भी मैंने मिसबिहेव करके, जो यहाँ के यूसी इंचार्ज थे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के, ये बात मैंने उनके हेड को भी बताई। मैंने कहा आपका अमला आया है, मैंने उसको रोकने की कोशिश की, वो मुझसे मिसबिहेव करके चले गए सफाई के लिए, कि हमें नहीं कहा कि हम जा रहे हैं। जी, ये कहते हैं कि सफाई का मसला इनका नहीं है, क्योंकि सफाई वेस्ट मैनेजमेंट वालों ने करनी थी। वो यहाँ पर सफाई करने के बजाय उल्टा यहाँ पर वो इनके साथ बदतमीजी करके गए हैं सफाई करने के बजाय। तो यहाँ पर ये सूरत हाल है। जो कमिश्नर डेरा गाजी खान है वो ये नोटिस ले चुके हैं, वहाँ पॉइंट्स जहाँ पर बुनियादी सहूलियात नहीं दी जा रही उनको बंद कर दिया जाए। जी, एक बार सादिक शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक पहुंचाने का मिशन। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान महर शाह समालक इन एक्शन। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान के जनरल बस स्टैंड पर किरायों की इंस्पेक्शन। डिप्टी कमिश्नर ने बसों में सवारियों से किरायों बारे दरियाफ्त किया। यहाँ अपडेट करें आपको, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक पहुंचाने का ये मिशन है। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान महर शाह समालक इन एक्शन। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान की जनरल बस स्टैंड पर किरायों की इंस्पेक्शन की गई है। डिप्टी कमिश्नर ने बसों में सवारियों के किरायों बारे दरियाफ्त किया। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ ट्रैक डाउन, 4 ड्राइवर और अड्डा मालिकान गिरफ्तार कर लिए गए। बस स्टैंड्स और टर्मिनल्स पर किरायों में कमी के पैनाफ्लेक्सेस आवेजा करने का हुक्म जारी किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि कानून शिकनों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात में पोलिंग का अमल जारी। एसोसिएट क्लास पर 12 नए एग्जेक्टिव मेंबरान चुने जा रहे हैं। एसोसिएट क्लास में 1000 मेंबर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। अब तक 400 से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। एसोसिएट क्लास पर 15 मेंबरान में मुकाबला जारी है। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे महमूद जहीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी महमूद, बताइए।
تو میں یہ بتاؤں گا کہ بہاولپور چیمبر آف کامرس کا جو الیکشن ہے وہ کس سٹیٹس پہ ٹھہرا ہے. 500 سے زائد ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں. 1050 سے زائد حق رائے دہی ووٹرز نے اپنا استعمال کرنا ہے جو کہ ممبران ہیں چیمبر آف کامرس آف بہاولپور کے, اور 12 ممبران جو ہے کارپوریٹ کے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں. ایسوسیٹ کلاس پر 15 ممبران میں مقابلہ جاری ہے, جبکہ کارپوریٹ اور ایسوسیٹ کلاس سمیت 2 خواتین ایگزیکٹو ممبرز ہوں گی. ایگزیکٹو ممبرز 2 سال کے لیے 23 ستمبر کو نئے صدر کا چناؤ کریں گے. 27 ستمبر کو نئی کابینہ کی حلف برداری تقریب بھی ہوگی. ایسوسیٹ کلاس میں 1000 ممبرز حق رائے دہی استعمال کریں گے. چیمبر آف کامرس میں پولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے. ایسوسیٹ کلاس پر 12 نئے ایگزیکٹو ممبران کا انتخاب ہوگا. بہاولپور چیمبر آف کامرس کے سالانہ انتخابات جاری ہیں. اب تک 400 سے زائد ووٹرز ووٹ ڈال چکے ہیں. ایسوسیٹ کلاس پر 15 ممبران میں مقابلہ ہے اور ایسوسیٹ کلاس پر 12 نئے ایگزیکٹو ممبران کا انتخاب ہوگا. محمود ظہیر سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے. جی محمود. 12 جو ہے ایسوسیٹ کلاس کے ممبران ایگزیکٹو کا چناؤ کیا جائے گا. 15 کے کاغذات نامزدگی جمع ہے جن کے حوالے سے آج الیکشن ہو رہا ہے. 12 کارپوریٹ کے جو ممبران ہیں ایگزیکٹو وہ ان کا چناؤ ہو چکا ہے. 2 خواتین بھی بلا مقابلہ جن میں شکیلہ صاحبہ اور عذرا محمود شیخ صاحبہ وہ بھی بلا مقابلہ منتخب ہو چکی ہیں. 26 میں سے 23 سیٹیں اتحاد گروپ اس وقت جیت چکا ہے. 3 لوگ اور آنے ہیں. اس کے علاوہ جو صدر کا چناؤ ہے وہ بھی, اور نئی سینئر نائب صدر ان کا چناؤ بھی 23 اور 25 کو ہوگا. اس کے بعد جو جنرل کھانا ہوگا اور حلف برداری کی تقریب ہوگی وہ 27 ستمبر کو ہوگی. کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج کا الیکشن کیا دیکھ رہے ہیں؟ فینٹاسٹک ڈے فار چیمبر آف کامرس ان بہاولپور. اور اصل بات یہ ہے کہ جو ممبران ہیں وہ الیکشن چاہتے ہیں اور بالآخر یہاں پہ کافی سالوں کے بعد الیکشن کی فضا ہے اور 23 سیٹیں اتحاد گروپ جیت چکا ہے. آج 3 سیٹوں پہ مقابلہ ہو رہا ہے اور وہ چھوٹی کلاس میں ایسوسیٹ کلاس میں ہو رہا ہے. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پورا بہاولپور, پورا بہاول نگر اور جتنی بھی تحصیلیں بڑی گہما گہمی کے ساتھ پرجوش انداز میں یہاں پہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں. یہی تاجران کی وکٹری ہے اور تاجران تصور کرتے ہیں کہ الیکشن کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. اس میں تاجران کا مفاد ہے اور تاجر اس سے بہت توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں. الیکشن کیسا دیکھ رہے ہیں؟ زبردست دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. پہلی مرتبہ الیکشن ہو رہا ہے بہاولپور میں, تو آگے پیچھے جتنا بھی عوام ہے پرسکون اور اچھا ہو رہا ہے انشاءاللہ. آپ کیا بتائیں گے کہ جی صبح ویسے آپ سے بات ہوئی ہے لیکن مختصراً بتائیے گا کیا مختصر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کتنے کاسٹ ہو چکے ہیں؟ 650 ووٹ کی کاسٹنگ ہو چکی ہے اور بزنس کمیونٹی کا پرامن الیکشن ہو رہا ہے. اب تک کسی بھی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں ہوئی ہے اور کنٹینیوسلی جو ہے وہ پولنگ جاری ہے. الحمدللہ اس بہاولپور شہر کے اندر بزنس کمیونٹی اپنے لیے بہت اچھا فیصلہ کرے گی. کیا کہیں گے آج کا الیکشن؟ السلام علیکم. یہ تقریباً 4 سال بعد جو ہے نا چیمبر کے الیکشن ہو رہے ہیں اور تاجروں میں بہت خوشی پائی جا رہی ہے اور گہما گہمی لگی ہوئی ہے. اور ایسے ہی جو ہے نا الیکشنز ہونے چاہیے. اس کے اندر جو ہے نا دکانداروں کے اور جو ہے نا تاجروں کے آپس میں جو ہے نا وہ ذہن کھل جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپس میں وہ گہما گہمی دکھانا چاہیں گے لوگوں کو کہ جو یہاں پر چیمبر آف کامرس کے الیکشن کے حوالے سے گہما گہمی جاری ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہاں پر جوڑ توڑ کا بھی سلسلہ جاری ہے یوں کہہ لیں, اور کنوینسنگ بھی کی جا رہی ہے. سرفراز ناظم صاحب آج کے الیکشن کے حوالے سے کیا کہیں؟ آپ خود ایگزیکٹو کے ممبر بھی ہیں بلا مقابلہ منتخب. بہاولپور چیمبر آف کامرس میں یہ 2 سال کے بعد الیکشن کا سلسلہ ہوا ہے. بڑا خوش آئندہ اور بڑا اچھا ٹرن اوور ہے. ابھی بڑے خوش اسلوبی سے ووٹنگ کا پروسیس جاری ہے, تو انشاءاللہ شام تک رزلٹ بھی آ جائیں گے. بڑا ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, اچھا پازیٹیو رسپانس ہے بہاولپور کی بزنس کمیونٹی کی طرف سے. ایک اور ایگزیکٹو ممبر ابراہیم اتنی سی عمر میں ایگزیکٹو ممبر بن گئے ہیں بلا مقابلہ, کیسے کہیں گے؟ السلام علیکم سر. پہلے تو میں سب اپنی بزنس کمیونٹی کا شکریہ بہت شکریہ. کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ اتحاد گروپ ہمیشہ ہم جیتے آئے ہیں اور انشاءاللہ اس بار بھی جیتیں گے. اس بار بھی جیتیں گے. جی چوئی صاحب کیا کہیں گے؟ اتحاد گروپ زندہ آباد. جی اتحاد گروپ کی جی 23 سیٹیں نکل چکی ہیں, اس وجہ سے سب کے سب. جی پلیز آپ ہمارا بھی انٹرویو لو بھائی. اتحاد گروپ زندہ آباد, زندہ آباد. بس آپ یہ گہما گہمی اس وقت دیکھ رہے ہیں. جو ہمارا دکھانا مقصد ہے اس وقت بہاولپور کے چیمبر آف کامرس کے الیکشنز کے حوالے سے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. سابق صدر ہیں ہمارے ساتھ ظفر شریف صاحب, کیا کہیں گے آج کے الیکشن کے حوالے سے؟ السلام علیکم سر, کیا حال ہے آپ کے؟
माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है और बड़े अच्छे माहौल में, दोस्ताना माहौल में पोलिंग हो रही है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इत्तेहाद ग्रुप वाज़ेह मार्जिन के साथ जीतेगा। तो उसके सदर का भी नाम बता देना, ना आप बताते हैं ना सरफराज नाज़िम साहब बताते हैं, क्या बात है आप लोग इतना? उसकी वजह ये है कि अभी इलेक्शन हो रहा है। चले अभी आप सुन रहे हैं जी, आज शाम तक इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद कल 1-2 रोज में इस हवाले से फैसला किया जाएगा कि नया सदर 2 साल के लिए कौन होगा। जी महमूद ज़हीर आगाह करने के लिए शुक्रिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पोलिंग का अमल जारी है। एसोसिएट क्लास पर 12 नए एग्जीक्यूटिव मेंबरान का इंतखाब होगा। एसोसिएट क्लास में 1000 मेंबर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। अब तक 400 से ज्यादा वोटर्स वोट डाल चुके हैं। एसोसिएट क्लास पर 15 मेंबरान में मुकाबला कॉरपोरेट और एसोसिएट क्लास समेत 2 खवातीन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होंगी। रहीम यार खान में स्कूलों में तलबा को खाने पीने की मियारी चीजों की फराहमी का मिशन। सीईओ एजुकेशन की डीईओज और मुतल्लिका महकमा एजुकेशन अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई हैं। मज़ीद जानते हैं आमिर भट्टी से। आमिर बताइएगा, मरासला जारी कर दिया गया है? बिल्कुल, हुकूमत पंजाब का ये विजन है कि सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों की सेहत को भी बेहतर बनाना, और वो कैसे बनाना है कि उन तक जो पहुंचने वाली खुराक होती है या फिर खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं उनका प्रॉपर जो है वो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और ऐसी खुराक जो कि मुज़र सेहत होती है या फिर नाकिस होते हैं उनको बच्चों की पहुँच से जो दूर रखा जाए। और इस हवाले से हुकूमत पंजाब और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शन पे सी एजुकेशन मोहम्मद तारिक जमील बलोच ने भी डीओ सेकेंडरी, डीओज, डिप्टी डीओज और मुतल्लिका जो महकमा एजुकेशन के अफसरान व स्कूल हेड्स हैं उनको भी एक हिदायत का मरासला जो वो जारी कर दिया है। इस मरासले का मतन कुछ इस तरह से है कि सरकारी स्कूलों में मोस्टली ये देखा जाता है कि स्कूल के अंदर या फिर स्कूल की दीवार के बाहर मुख्तलिफ दुकानें होती हैं, रेडीबान होते हैं या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के लिए जो है वो उनकी सेहत के लिए जो है वो मुज़र सेहत होती है, नाकिस होती हैं। ऐसी चीज़ों से बच्चों को महफूज रखा जाए, उनको रहनुमाई की जाए और ऐसे दुकान या रेडीबान वालों को बच्चों से दूर रखा जाए। इसके साथ साथ जो स्कूल हेड्स हैं उनको अफसरान जो है वो हिदायत दें और फिर स्कूल हेड्स वालिदैन के साथ जो वो स्कूल के अंदर एक मीटिंग करें जिसमें उनको बताएं कि क्या चीज़ जो है वो बच्चे खाएं ताकि वो सेहत के लिए उनके लिए बेहतर हो, कौन सी चीज़ उनकी सेहत के लिए जो है वो नाकिस है। और इस हवाले से ये भी उनको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चों को जब घर से स्कूल भेजें तो उनके साथ जो है वो लंच बॉक्स जो है वो लाजमी दें, जिसमें बच्चों के लिए जो है वो जैसे ऑमलेट होता है, पराठे होते हैं और इसके साथ साथ दीगर जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल मियारी हों और इसके साथ साथ हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक हो। इसके साथ साथ बच्चों के पीने के लिए जो पानी होता है उसके लिए भी बच्चों को जो है वो घर से पानी की बोतलें दीजिए। अगर कोई वालिदैन मसरूफियात की वजह से स्कूल में हाजिर नहीं हो सकते तो जो टीचर्स हैं, हेड्स हैं, उनको चाहिए कि बच्चों की नोटबुक पे तमाम तरह इंस्ट्रक्शन जो है वो बच्चों के जरिए जो है वो वालिदैन तक पहुंचाए ताकि वालिदैन भी जो है वो इन हिदायत पर अमल कर सके और वालिदैन और जो उसके साथ साथ स्कूल हेड्स और टीचर्स ने मिलकर बदमाई भी करें। और इसके साथ साथ स्कूलों में इन तमाम तर चीज़ों पर जो है वो पाबंदी भी आयद कर दी गई है और सिर्फ बेहतर खुराक वही जो बच्चों की सेहत के लिए बेहतर हो वही उन तक पहुंचाई जा सके। जी आमिर भट्टी, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। उधर बहावलपुर में स्मोक सीजन से कबल महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का इंसदाद स्मोक ऑपरेशन का आगाज ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर अमल दरामद न करने पर शहर में वाक़ई भट्टे खिश्त गिरा दिया गया। मज़ीद जानते हैं ताहिर जोया से। जी ताहिर, बताइए। बिल्कुल जी, स्मोक सीजन से कबल महकमा माहौलियात मुतरक हुआ है और स्मोक के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं उनको भी तेज़ किया गया है। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ना करने वाले भट्टों को डिमोलिश किया जा रहा है। आप मेरे में भी देख सकते हैं कि बहावलपुर के नवाब में एक भट्टा वाक़ है जिसको बारहा नोटिस भी जारी किए गए। नोटिस के बावजूद अमल दरामद ना होने पर इस भट्टे को डिमोलिश किया जा रहा है। महकमा माहौलियात की टीम जो है वो मौका पर मौजूद है, उनसे हम बात भी कर लेते हैं इस हवाले से कि जो पॉलिसी है उस पर किस तरह से अमल दरामद करवाया जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल हाई कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सेक्रेटरी इन्वायरमेंट, डीजी इन्वायरमेंट और कमिश्नर भावलपुर और डिप्टी कमिश्नर भावलपुर के अहकामात के मुताबिक स्मोक पॉलिसी के मुताबिक हमने डिस्ट्रिक्ट भावलपुर में 201 जो है ना नोटिस जारी किए हैं और जो वायलेशन कर रहे हैं, ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर अमल नहीं कर रहे, उनको स्मोक पॉलिसी के मुताबिक डिमोलिश किया जा रहा है। हम अहलियान भावलपुर और भट्ठा मालकान से गुजारिश करेंगे कि अपने
भट्ठों को जो है ना जिगजैग टेक्नोलॉजी पर जो है ना चलाएं, इसके बगैर बिल्कुल नहीं चलेंगे, क्योंकि हमने इस मुल्क को, इस पंजाब को, इस बहावलपुर को आलूदगी से पाक करना है। जिस भट्ठे का काला धुआं नजर आ गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल की जाएगी, उसके FIR भी दी जाएगी, भारी जुर्माने भी किए जाएंगे और डिमोलिश भी किया जाएगा। बिल्कुल जी, स्मोक सीजन से कबल कार्रवाइयां जो हैं उनका आगाज भावलपुर के नवाई इलाके से किया गया है। ये भट्टा मेरे कप में आप देख रहे हैं, इसको मुकम्मल तौर पर डिमोलिश किया जा रहा है और यही कहना है महकमे माहौलियात का कि जो भी इस जिगजैग इस्तेमाल नहीं करेगा उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई जाएंगी और साथ साथ जो कानूनी कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जाएगी। कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ताहिर, शुक्रिया आपका। मियांवाली में डेंगू के खात्मे के लिए डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गोराया सर्विलेंस टीमों की मॉनिटरिंग के लिए पहुंच गए। तफसीलात से आगाह करेंगे अख्तर मजाज। जी अख्तर। अगर बात की जाए डेंगू के खात्मे के हवाले से तो मियांवाली इंतजामिया इस वक्त मुतहरक हो चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया साहब डेंगू टीमों की चेकिंग के लिए इस वक्त फील्ड में और आप हमारे साथ मौजूद भी हैं। आपसे इस हवाले से हम बात करते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया। ये जो केस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो लाहौर का केस है। लाहौर में वो बच्ची एडमिट हुई है, वहाँ पे उसका पॉजिटिव आया, वो मियांवाली की नहीं है। लेकिन डेंगू के हवाले से चूँकि सीज़न है डेंगू का, तो उसके हवाले से हेल्थ की टीमें काम कर रही हैं। 112 टीम्स इंडोर टीम है जो कि शहर में मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही हैं। अब मैं निकला हुआ हूँ, CO साहब खुद हैं, DOH हैं, ये तमाम जो सर्विलेंस टीम है उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, डोर टू डोर टीमें जा रही हैं। उस हवाले से हमारी एक्टिविटी जो है जो ज़िले में चल रही है उसकी मॉनिटरिंग के लिए हम उसके चेक कर रहे हैं। जी, मॉनिटरिंग की जा रही है। CO हेल्थ डॉक्टर रफ़ीक खान नियाज़ साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, आपसे भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो टीमें पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम सर्विलेंस कर रही हैं, इंडोर टीमें हमारी हैं, आउटडोर टीमें हैं। और इंडोर टीमें घर घर जाकर एक तो सर्विलेंस कर रही हैं, जहां पानी खड़ा है या कोई इस तरह का कबाड़ का नंबर जगह बनी हुई तो उसको ख़त्म कर रहे हैं। दोबारा हम जाएंगे, अगर वो वायलेशन पड़ेगी तो हम उनके कारखाने या उनके सर्विस स्टेशन हम सील कर देंगे और हमारी एंटी डेंगू एक्टिविटी पूरे डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह जारी रहेगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने CO साहब की बात सुनी, जहां पर लोगों को एजुकेट किया जा रहा है, वहां पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है कबाड़ खाने और बिलखसूस सर्विस स्टेशन पर। वहां पर नोटिस भी दिए गए हैं कि इस तरह इकदाम किए जाए, अगर खिल होती है तो उनके खिलाफ FIRs भी दी जाएगी। अख्तर मुजाज, शुक्रिया आपका। तरंडा मोहम्मद पनाह में कैनाल रोड टूट फूट का शिकार है। सड़क पर पड़े पत्थर और गड़े हादसात का सबब बनने लगे। सड़क किनारे होने की वजह से इलाका मकीनों को सफरी मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं गुलाम अली से। जी अली, बताइएगा। आज बिल्कुल तरंडा मोहम्मद पनाह और गंजी मोरी को आपस में मिलाने वाला 3 किलोमीटर का जो तवील मेटर रोड का टुकड़ा है, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। मेटर रोड पर जगह जगह पड़े पत्थर और गड्ढे जो है हादसात का मौजब बनने लगे हैं। इलाका मकीनों को सफरी मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी साहब, दसे सो रोड टूटिया पे कितनी दुश्वारी है? ये सड़क बिल्कुल टूटी पई है, जगह जगह गड़े पाते पे, जगह जगह अपना बंदा नहीं चल सकता, मोटरसाइकिल नहीं चल सकता, मोटरसाइकिल पंचर थी वेंदन, लोग बच्चियां चाहते वेंदन, सवारियां चाहते वेंदन, वो भी ढह वेंदन। इको मेरी आला हुकाम को अपना अपील है कि भाई ईंदे उते काम कराया वने और इको मुकम्मल कराया वने ताकि लोग। जी, इलाका मकीनों का कहना है कि गंजी मोरी से लेकर तरंडा मोहम्मद पनाह बाईपास तक ये 3 किलोमीटर का मेटर रोड जो है अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। रोड पर जो पड़े पत्थर हैं इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। यहाँ पर इलाका मकीनों की कीमती गाड़ियां जो है नकारा होने लगी हैं। उन्होंने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि फिल और जो है इस रोड को मुरम्मत करवाया जाए ताकि इलाका मकीनों को सफरी सहूलत जो है वो मुयसर आ सके। मुल्तान में सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान जारी है। 24 घंटे में सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपए का इजाफा। 24 कैरेट सोना 2,71,000 रुपए फी तोला हो गया। तफसीलात से आगाह करेंगे फराज रमजान। जी देखिए, सोने की कीमतों के हवाले से अगर आपको आगाह करते चलें तो सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान जारी है। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपये का इजाफा देखने में मिला है। अगर 24 कैरेट सोने की बात करते चलें तो 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत जो है वो इस वक्त 2,70,000 रुपये से बढ़कर जो है वो 1000 रुपये इजाफे के बाद 2,71,000 रुपये जो है वो फी तोला फरोख्त हो रहा है। और इसके साथ साथ अगर 22 कैरेट सोने की बात करते चलें तो 22 कैरेट सोने की फी तोला कीमत जो है वो इस वक्त मार्केट में वो अगर आपको बताते चलें तो वो 2,68,000
48,400 रुपये फी तोला जो है वो हो चुकी है। अगर इसी के साथ साथ ग्राम के रेट के हवाले से आपको आगाह करते चले तो 24 कैरेट सोना जो है वो 23,200 रुपये फी ग्राम हो चुका है, जबकि 22 कैरेट सोना जो है वो 21,300 रुपये फी ग्राम जो है वो मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। जबकि सोना महंगा होने की वजह से जो दुकानदार हजरात है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों की जानिब से कहा यह जा रहा है कि सोना महंगा होने की वजह से उनका कारोबार जो है वो मुतासिर हो रहा है। जो कस्टमर हजरात है उनका रुझान जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ जा रहा है और सोना महंगा होने की वजह से जो कस्टमर है उनकी कुव्वत खरीद जो है वो दिन ब दिन जो है वो मुतासिर होती दिखाई दे रही है। अगर इसी के साथ बात करते चले तो जो गैर शादीशुदा हजरात हैं उनकी भी मुश्किलात में जो है वो इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि सोना महंगा होने की वजह से जो है वो दिन ब दिन जो है वो आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। और इसके साथ मजीद बात करते चले तो इनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए प्रॉपर चेक एंड बैलेंस करे, सोतों में जो है वो कमी लाई जाए ताकि इनका तबाहकुन कारोबार जो है वो फिर से बहाल हो सके। जी फराज, शुक्रिया आपका। कोटद्दू में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ओपन डोर पॉलिसी, डीसी ने आवाम के मसाइल सुने और उनके हल के लिए फौरी अहकाम जारी किए। मज़ीद जान लेते हैं शफकत मलाना से। बताइएगा शफकत। आज वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब भर में जितने भी डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और सरकारी मुलाजमीन है तमाम को 10 बजे से 11 बजे तक जो है ओपन डोर कचहरी लगाने की हिदायत की गई है, जिसके पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी साहब की जानिब से आज ओपन कचहरी लगाई गई। उसके साथ साथ मैं बात करते चलूँ तो डिप्टी कमिश्नर सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी साहब की जानिब से तकरीबन 10 माह से ऊपर की तैनाती में इनकी दिन में 2 दफ़ा खुली कचहरी होती है। सर, सीएम साहब की हिदायत तो अब है, माशाल्लाह आपने तो स्टार्ट से ही इस तरह की खुली कचहरी लगाई हुई है, अब पूरे पंजाब में इस तरह का है, उस हवाले से आपका क्या कहना है? ओपन डोर पॉलिसी का जो टाइम तय किया गया है और डायरेक्शंस हमें रिसीव हुई हैं उस पर आज से फौरी तौर पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है और उसमें सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे के दरमियान ओपन डोर पॉलिसी की डायरेक्शंस हमें रिसीव हुई हैं। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि हम इससे पहले भी कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन की हदायत के मुताबिक आसान रसाई मसाइल कम के टाइटल के तहत हम इससे पहले सुबह 9:30 बजे से खुली कचहरी का इनेकाद कर रहे हैं और सैकड़ों जो साइलिन हैं उनके हम ऑलरेडी डोर मसाइल को हल कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी जो रेवेन्यू की जो कंप्लेंट्स हैं, आपको पता है कि ज़्यादा जो इश्यूज होते हैं या तो इधर लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड होते हैं या फिर वो रेवेन्यू के ज़मीनों के मामलात हैं, जिसके लिए हफ्ते में 4 दिन हम रेवेन्यू की कोर्ट कंडक्ट करते हैं और सैकड़ों जो हमारे लोग हैं उनके मसाइल हल कर चुके हैं अभी तक। डी साहब 10 माह से ही मुसलसल यहाँ पे 2 दफ़ा दिन में खुली कचहरी लगा रहे हैं, सैकड़ों अवाम के यहाँ पे रोजाना की बुनियाद पे मसाइल हल होते हैं। अब तक जो रेवेन्यू है, हजारों की तादाद में लोगों के रेवेन्यू केसेस भी इसी खुली कचहरी में जो है हल हो चुके हैं। लोग यहाँ पे दुआएं देते आ रहे हैं। अब ये है जो मजीद डी साहब का वक्त जो है सीएम साहब की हिदायत पर अवाम को दे दिया गया, जिसकी वजह से कोटद्दू की अवाम के मजीद जो है मसाइल काफी ज्यादा आसान तरीके से हल होंगे। जी शुक्रिया शफकत मलाना। उधर लिया में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अहकामात पर अमल दरामद शुरू। डिप्टी कमिश्नर अमीर आबेदार ने शहरियों के मसाइल सुने और मुतल्लिका अफसरान से रिपोर्ट तलब की। कहना था वज़ीर आला की हिदायत पर पब्लिक डीलिंग औकात मुकर्रर किए। अफसरान सुबह 10 से 11:30 बजे तक दफातर में शहरियों के मसाइल सुने। आवाम मसाइल के हल के लिए मुकर्रर वक्त पर मुतल्लिका दफातर से रुजू करें। अफसरान की गैर मौजूदगी या मसला हल न होने की शिकायत पर महकमाना कार्रवाई होगी। लिया से आगाह करें, आपको वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो गया। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी का सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान से राबता। जावेद हाशमी ने मौलाना फजलुर रहमान के आईनी तरमीम पर नुक्ता नजर को सराहा। जावेद हाशमी ने मौलाना फजलुर रहमान से आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान जल्द मुलाकात पर भी इत्तेफाक किया गया। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी का सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान से राबता। जावेद हाशमी ने मौलाना फजलुर रहमान के आईनी तरमीम पर नुक्ता नजर को सराहा। जावेद हाशमी ने मौलाना फजलुर रहमान से आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू भी की। मुजफ्फरगढ़ में बरवक्त डाक की तरसील के लिए पाकिस्तान पोस्ट ने नए सर्विस मुतारिफ करवा दी। जीपीओ में सीनियर पोस्ट मास्टर शोबान साजिद ने यूएमएस प्लस के नाम से सर्विस का इफ्तिताह किया। सर्विस के इफ्तिताह के मौके पर केक भी काटा गया। मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक। सीनियर पोस्ट मास्टर का कहना था 24 घंटे के दौरान डाक की तरसील हर सूरत मुमकिन बनाई जाएगी। जनूबी पंजाब में कामयाबी के बाद इस सर्विस का दायरा कार पूरे मुल्क में फैलाया जाएगा।
प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत लोधरा पुलिस की शजरकारी मुहिम। डीपीओ कामरान मुमताज ने पुलिस लाइन में पौधा लगाकर बाकायदा शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इफ्तिताही तकरीब में डीएसपी हेडक्वार्टर एजाज मुस्मान भी हमरा। मुहिम में आम, जामुन, शहतूत और नीम समेत दीगर फलदार और सायादार दरख्त शामिल हैं। खानेवाल में गरीब नादार मरीजों के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। नौरीन निशात हस्पताल की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगा दिया गया। मजीद जान लेते हैं नदीम मुगल से। जी नदीम, बताइए। नौरीन निशात अस्पताल की जानिब से आज पुराना खानेवाल में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें फ्री मेडिकल कैंप में लैब हो या आई टेस्ट हो या दीगर जो सहूलियात हैं वो मुफ्त फराम की जा रही है। तो मजीद पर हम बात करेंगे नौरीन निशात खान डॉक्टर साहब से मौजूद है, उनसे जानेंगे इस हवाले से मरीजों को कौन कौन सी सहूलियात फ्री जो है यहाँ पर फराम की जा रही है। कहना रहेगा कि आज फ्री कैंप आपके हॉस्पिटल की जानिब से लगाया गया, तो कौन कौन सी फ्री टेस्ट हैं और दीगर सहूलियात हैं जो आप यहाँ पर मरीजों को फ्री फराम कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ इसलिए शुरू किया है कि बाज़-औक़ात ना दूर जो हमारे नज़दीक इलाके हैं वहाँ से भी लोग नहीं आते, लोग अपनी सेहत को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ जगह जगह शुरू किया है। शहर में भी हम जाएंगे, हर जगह जाएंगे इंशाअल्लाह। कोशिश पूरी है कि लोगों को अवेयरनेस दें। मुख्तलिफ खामोश बीमारियाँ होती हैं जो लोगों को पता भी नहीं चलता। तो सबसे पहले हेपेटाइटिस का, हेपेटाइटिस हमारे इलाके में गंदे पानी की वजह से ना, ये जो सब्जियां साथ काश्त की जाती हैं उनके लिए जोड़ों का गंदा पानी जो दिया जाता है उनको, उसकी वजह से आम है।